एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट। तो चलो देखते हैं क्या होता है ये। पहले तो रिसेप्टर postulated to exist in inactive form, non-functional form, and activated form. The thermodynamic considerations that indicates the even in the absence of any agonist, कोई agonist अगर present ना भी हो तो receptor pool must be exist in active form and some of the time may produce physiological effect as agonist induced activity. So this effect occurring in the absence of agonist is termed as constitutive activity. तो थर्मोडायनामिक कंसिडरेशंस ऐसे है कि जब हमारा एगोनिस्ट प्रेजेंट नहीं है तब भी हमारे रिसेप्टर को एक्टिव फॉर्म में रहना है और वैसा ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बनाना है या प्रोड्यूस करना है. सो दैट इज called as constitutive activity of agonist. Agonists are those drugs that have much higher affinity for the receptor activating configuration and stabilize it so that large percentage of total pool resides in the receptor activity fraction and the large effect is produced. अब हम जब एगोनिस्ट इस कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी के कंडीशन में अगर हम जब ये ड्रग इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उस ड्रग की जो एक्टिव रिसेप्टर है उसके लिए एफिनिटी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा अमाउंट में लार्ज इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा. So the recognition of constitutive activity may depend on receptor density. अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी में है, ये कैसे पता चलेगा? तो रिसेप्टर की डेंसिटी से, रिसेप्टर की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कपलिंग मॉलिक्यूल्स, उसके आजू बाजू जो कपलिंग मॉलिक्यूल्स है वो अगर वो कपलिंग मॉलिक्यूल्स को यूज़ करता है तो, या फिर नंबर ऑफ इफेक्टर्स इन द सिस्टम, इनसे पता चलेगा. तो many agonist drugs when administered at concentration sufficient to saturate the receptor pool can activate the receptor effector systems to maximize the extent of which system is capable. That is, they cause the shift of almost all receptor pool to receptor active D pool. Such are termed as full agonist. अब जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी को इंक्रीज करता है और सारा रिसेप्टर डी पूल जो है वो इसी के लिए कॉन्सेंट्रेट करता है तो या फिर सैचुरेट करता है एक की एक्टिवेशन के लिए, तो उसको हम उस ड्रग को बोलेंगे फुल्ली एगोनिस्ट. अदर ड्रग्स आर कॉल्ड पार्शियल एगोनिस्ट विच बाइंड टू द सेम रिसेप्टर एंड एक्टिवेट देम in the same way but do not evoke as great response as they are in how they must do in high concentration. मतलब ये जो पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं ये जैसे हमारे रिसेप्टर की कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी होती है और हम बाहर से फिर जो एगोनिस्ट ड्रग देते हैं वो जब कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी फुल्ली बढ़ाता है तो वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, वो उस हाई कॉन्सेंट्रेशन में रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट कर पाते, तो इसलिए उन्हें पार्शियल एगोनिस्ट कहा गया. दे डू नॉट स्टेबिलाइज द RAD configuration as fully as agonist, so significant fraction of receptor exist in receptor inactivated D pool. Such drugs are said to have low intrinsic efficacy. Thus, Pindolo, which is a beta adrenal receptor partial agonist, Pindolo, act as agonist if no full agonist is present और अगर
इसके लिए फुल एगोनिस्ट नहीं प्रेजेंट है तो वो एगोनिस्ट की तरह एक्टिविटी करेगा। अगर फुल एगोनिस्ट प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल एफिनेफ्रिन, तो ये एंटागोनिस्ट एक्ट करेगा। तो ये दोनों तरह से एक्ट करता है पिंडोलो, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट इन द केस when there is no presence of full of agonist, no presence of agonist, it will as agonist, but there is presence of agonist, then it will act antagonist। उल्टा है इसका। इंट्रिंसिक efficacy is independent of affinity। Intrinsic efficacy, it is independent of affinity as usually measured for receptor। In some model, conventional antagonist action can be explained as fiction fractions of drug-bound inactivator and receptor activator in same relative amounts as absence of any drug। This situation, no change will be observed, so the drug will appear to be without effect। Some cases में फिक्सिंग फ्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है, तो जो हमारे फ्रैक्शंस है रिसेप्टर इनएक्टिवेटेड फॉर्म और रिसेप्टर एक्टिवेटेड फॉर्म के, वो वैसे ही रहते हैं, सेम ही रहते हैं, दोनों सेम ही रहते हैं। तो ड्रग की जैसे कि ड्रग के एब्सेंस फॉर्म में होता है, सो इस सिचुएशन में कोई चेंज नहीं होता, तो ड्रग विल बी विदाउट इफेक्ट। However, presence of antagonist at the receptor site will block the access of agonist to receptor and prevent the usual agonist effect। Such blocking action term as neutral antagonism। हमारा ये है एंटागोनिस्ट, ये है हमारा एगोनिस्ट, और ये है हमारा रिसेप्टर। अब इसके पास, हाँ, ये सिचुएशन देखते हैं, इसके पास रिसेप्टर के पास आ गया हमारा एंटागोनिस्ट और हमारा ये एगोनिस्ट भी आ गया। अब क्या होगा, एगोनिस्ट जब रिसेप्टर को बाइंड करता था तो एक्टिवेशन का फंक्शन होता था, बट हमारा एक्टिवेशन का फंक्शन ही नहीं हो रहा, रिसेप्टर वैसे की वैसे ही रह रहा है, कुछ उसका नो फंक्शन हो रहा है। तो ये ब्लॉकेज हो गया ना एंड एगोनिस्ट की इफेक्ट को, तो इस ब्लॉकेज को क्या कहेंगे हम, ये ब्लॉकेज हो गया, तो इस ब्लॉकेज को कहते हैं न्यूट्रल एंटागोनिज्म। न्यूट्रल एंटागोनिज्म। So that's all we will study next in next part।